हेलो फ्रेंड्स की खबर वेलकम टू प्रदीप यार यूट्यूब चैनल আজি আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাব যেহেতু আজি মই এটা নতুন সাজত আছোঁ মই আজি শাড়ী পিন্ধিছোঁ ৰঙা শাড়ী পিন্ধিছোঁ আৰু মংগলসূত্ৰ পিন্ধিছোঁ খাৰু পিন্ধিছোঁ আৰু আঙুঠি পিন্ধিছোঁ আজি মই এইটো সাজত কিয় আছোঁ আজি মই নতুন এটা জেগালৈ যাম আৰু প্ৰথম যাম ফাৰ্ষ্ট যাম চাই থাকক আজি মই দিনটো কেনেকৈ পাৰ কৰোঁ আৰু যে চাই থাকোঁতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলৰ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আশা কৰোঁ সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পাব থেংক ইউ বৰ্তমান মই আহি আছোঁ মই যিহেতু টেম্পতে আছোঁ মই আহি আছোঁ চাই থাকক আপোনালোকেও এইটো শিৱসাগৰৰ এনেই ক'ৰ্টৰ ফালে যায় তো ৰাস্তা ফাইনেলি মই পাই গৈছোঁহি ফাইনেলি মই পাই গ'লোঁ আৰু তেতিয়া আপোনালোকক বাকীখিনি দিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ একে দি আছোঁ লাহে লাহে সকলো কাম হৈ আছে আৰু মই যিহেতু আগৰ মাজতে মই মাটাৰ ছিংগাৰ কৰিছিলোঁ সেইবাবে মই সেইখিনি ছিংগাৰ সময়খিনি ভিডিঅ' কৰিব নাপায় চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কৰা নাছিলোঁ আৰু মাটাৰ ওচৰত ফুল চুল দিছিলোঁ আৰু এইখিনি মই তেওঁক কাপোৰ পিন্ধাইছিলোঁ কিন্তু সেইকাৰণে চব সময় ভিডিঅ' কৰিবলৈ থাকি গ'ল বাই দ্য ৱে আপোনালোকো আহিবচোন সন্তোষী মা মন্দিৰ আপোনালোকেতো জানেই ন সন্তোষী মা পূজা কৰিলে সকলো অপায় অমংগল সকলো বিপদৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰি যিহেতু সেইকাৰণে আপোনালোকো আহিব সন্তোষী মা মন্দিৰ এবাৰ দৰ্শন কৰি যাব বহুত মনটো মুকলি লাগিব এতিয়া বিশেষকৈ মই ফুল চুল সজাই আছোঁ আৰু আজি যিহেতু সন্তোষী মা মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এবছৰ হ'ল সেইবাবে সকলো ফূৰ্তিত আছে যিহেতু অঞ্জন দেউতা ভাগৰ আজি লাষ্টত আজি তেওঁৰ এটা সপোন এবছৰ হৈ পূৰা হৈ গৈছে তেওঁৰ এটা সপোন সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে চবৰে মন লাগে নেকি অঞ্জনদা ফটো দিবলৈ অকণমান দুপা তিনিবাৰমান দিয়কচোন বেছি নালাগে দুপা তিনিবাৰ দিলে এখন কামাও নে এই মাত্ৰ বলতো চলাই দিলে দীপালি অঞ্জনদাৰ ফটো আছে নাই ইয়াতে ফুল পাব যা আৰু ফুল আনিব গৈছে চুনি খনে বেয়া হ'ল কি চুনি খনে ভাল না ভাল লাগে অৰিজিনাল হয় না মই নেজানিলো নহয় মই আপুনি চুনি 10-15 होगी 11 बजे खोलना पड़ता है आपको चेंज करें জাপি লগাই দিব লাগিব আৰু আছিলে নেকি এই আঠা আছে মই লগাই দিব লাগিব পৱনজি এই আঠাটো আছিলে দিয়কচোন জাপিৰ পৰা এৰাই গৈছে লগাই দিম আঠা আছিলে ইয়াত আছম আলমাৰি তো পিছত লগাই মই দেখিলো কাৰণে জাবৰৰ লগত উঠাই আছে মই দেখি পেলাই উঠাই ললো
এতিয়া আমি ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ। এনেকুৱা শিৱসাগৰত যে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ, এনেকুৱা এটা মন্দিৰ আছে আৰু বহুতো ভক্ত আহিছে, ইয়াতে কাম বন কৰিছে। এয়া এগৰাকী তাৰে ভক্ত, আপোনালোকক মই দেখাবলৈ বৰ সুখী। চাওক, তেওঁলোকে আহি নিজে কাম কৰিছে। ই কেনেকৈ মানে ক'ব নোৱাৰি আপোনালোকক, আৰু মই তেনেকৈ ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু মই দেখাম আৰু ভক্তসকল আহি আছে লাহে লাহে। এয়া দেখিছে ইমান সন্মানীয়সকলেও আহিছে, লগতে সন্তোষীমা ভক্ত। शुक्रवार तेरो दिन कारो सदा में पधारो दुर्गारो भाव मन में तेरो न्यारो मनमानी प्रगटाए तेरा तुझको दे रहे करो कृतार्थ मा हो लगा हाँ कर कृपा कर दूर करो क्षमा में भूल को तुम हो सर्वज्ञ सब विधि अर्थ मात हूँ कुछ नहीं मांगो आपसे जो हमको पहचान माँ संतोषी आप है सबको धूप लगाए घंटे की बजरी बजाती करो आरती 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 दिखाओ तो आरती दिखाओ इसको सुना हाथ में लेके हाँ जो खाने के लिए ये मतलब क्या नहीं अरे बैठे बड़ा छोटा बड़ा कुछ नहीं बड़ा ही आराम से शांति से चलो बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बात तो सब नीचे जाकर आराम से बैठो बनाई देखो आप तो बना नहीं अनजान में कुछ नहीं हो जाओ हाँ सबको बैठो चना कली चना को भोग में लगो सब अभी सबको ये खाकर हाथ धो लो सब खाए था हाथ धो लो हाँ सब प्रसाद ले लो अरे प्रसाद
प्रसाद लो भाई, जिसको प्रसाद नहीं मिला है। अरे प्रसाद खाने कोई नहीं जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे खाना पड़ेगा। पवन जी सुनिए, 4 बार तो हम ठीक कर दिए सुबह से। सुनिए, अभी वो बच्चा को घुमाएगा। तो नहीं तो एक काम करना, मेरा नंबर मिला है, एक साथ होगा। गुड सना देख दोनों लड़का लोग उठाओ लाइन से बैठो, लाइन से बैठो। दोनों बात होगी। तुम्हें बना नहीं वो ऊपर से बहुत टाइट है। नहीं ऐसे को पूरा टूल दे दे। देखो अगर होता है क्या बोलो वो नीचे प्लग में लगेगा, वो 2 पिन है, इनको चेयर दे दीजिए नीचे पिन है ना वहाँ पे। एक बार एक बार देखा या माची सच्ची बोल रहा है, माची जोर है। सामग्री में रखो। खाली वो कौन को कौन करोगे चांस है अब बस 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 वो ज्यादा भी थोड़ा बस बस नो इधर देखो इधर आओ स्टैंड में लगाया
कुल सब में मिल गया ना, हाथ में बटोड़ा में समय कपड़ा में नहीं मिले तो बोलो संतोषी माता की। देखिए बहुत खुशी का दिन है आज, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आज 1 साल पूरा हो गया आप लोगों के सहयोग से और माता रानी की कृपा से। देखते देखते आज पूरा 1 साल हो गया और माँ की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, यही माँ से प्रार्थना करते हुए अभी हम लोग कथा करेंगे, कथा सुनेंगे, उसके बाद माँ को भोग लगाकर आरती करेंगे। उसके बाद सब कोई जो भी है प्रसाद वही लेगा जो खटाई खाटी नहीं, वो न जाकर के आज खाएगा, क्योंकि देखिए बाद में गलत हो जाता है। शुक्रवार का दिन भी रह गया, खटाई बच्चा लोग भी अगर कोई आए बुलाए जिसको रात को कोई खटाई नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखना है और कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें फिर हम लोग दोषी नहीं रहेगा। शुक्रवार आज शुक्रवार भी पड़ गया, ये सौभाग्य की बात है कि आज शुक्रवार भी पड़ गया, आज माँ की प्राण प्रतिष्ठा का दिन भी है, ये बहुत ही हम लोग का सौभाग्यशाली है हम लोग। तो अभी हम लोग कथा शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुन करके। खाली कथा सुनने का मतलब नहीं कि कथा सुन लिया इस कान से सुना दूसरा कान से निकाल लिया, इस कथा में जो भी समझ में आता है उसको अपने जीवन में उतार करके कैसे संतोषी माता की कृपा बनी उसके ऊपर ध्यान रखते हुए माँ संतोषी के दरबार में जब भी मौका मिले जरूर आइए सब कोई और माँ का दर्शन करें। बोल संतोषी माता की जय। कंचनपुर नगर में एक गुड़िया रहती थी। उस गुड़िया के 7 बेटे थे, सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने अपने काम पर चले जाते थे। गुड़िया उन बेटों को अपने हाथ से खीर, पूड़ी, हलवा आदि पकवान बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा धूप निकलने पर बिस्तर से उठता था, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता था। गुड़िया दूसरे बेटों का बचा हुआ खाना एक थाली में रखकर उसे दे देती थी। 7वां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इस तरह मौज मस्ती में उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उससे कोई काम करने के लिए कहती थी, लेकिन वह हंसकर कहता था, अरे तुम बार बार क्यों कहती हो, कितने मजे से दिन गुजर रहे हैं, माँ कितने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा हुआ जूठा भोजन खिलाती। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो किसी दिन छिपकर समय अपनी आंखों से देख लेना। अपनी पत्नी की बात पर उसे विश्वास नहीं था। एक दिन इस बात की सच्चाई जानने का निर्णय करके वह सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गई। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने अपने बेटों को खीर, पूड़ी, हलवा आदि बनाकर खिलाए। भोजन करके वे अपने काम में चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उनकी थाली में बचे हुए भोजन को एक थाली में रखा। फिर बुढ़िया ने 7वें बेटे को भोजन करने के लिए कहा। उसने चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत परदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने से पहले वह पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के कंडे थाप रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपना पास। अपने पति के वचन सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, 2 निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुधी मत हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। अपनी पत्नी के वचन सुनकर वह बोला, मेरे पास निशानी के लिए बस एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो, लेकिन अब तुम भी अपनी कोई निशानी मुझे दे दो, ताकि परदेश में उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सके। अपने पति की बात सुनकर वह बोली, ना मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसकी पीठ पर छाप लगा दी। 7वां बेटा अपनी पत्नी की उस निशानी को लेकर परदेश के लिए चल पड़ा। कई दिन की लंबी यात्रा करके वह एक विशाल नगर में पहुंचा। उसने एक दुकानदारों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबने उसे परदेशी जानकर उसकी प्रार्थना को ठुकरा दिया। निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की जरूरत थी। उस सेठ ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उसी दिन से सेठ का भाग्य बदल गया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई और वह उस लड़के से बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में
उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवहार से दुकान पर आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ ने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपना हिस्सेदार बनाया। कुछ ही महीनों में उस लड़के ने बहुत सा धन कमाया। संयोगवश कुछ समय बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर दूर किसी नगर में जाना पड़ा। अतः सेठ अपना हिस्सा लेकर दुकान उस लड़के को देकर चला गया। उधर बुढ़िया ने उस लड़के की पत्नी को बहुत दुख देने शुरू कर दिया। वह हर समय बहू को जली कटी बातें सुनाती रहती थी। बहू बेचारी हर समय काम में लगी रहती थी, फिर भी उसकी जेठानियां उसे बुरा भला कहती रहती थी। सुबह उठते ही बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को जंगल में लकड़ियां लेने के लिए भेज देती थी। उसे आटे से निकले चोकर की रोटियां खाने को देती थी और नारियल की कटोरी में पानी देती थी। वह बेचारी चोकर की रोटियां खाकर भी किसी से कुछ नहीं कहती, बस इसे अपने भाग्य का लेखा सोचकर चुप रह जाती थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काट कर लौट रही थी। उस रास्ते में संतोषी माता का मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रखकर कुछ देर आराम करने के लिए वहां रुक गया। मंदिर में उसने बहुत सी स्त्रियों को पूजा करते देखा तो पूछा, आप किसकी पूजा कर रही हैं? इस पूजा से क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने उसे बताया, हम संतोषी माता का व्रत करके उसकी पूजा कर रही हैं। संतोषी माता का पूजा करने से धन संपत्ति से भंडार भर जाते हैं, निर्धनता दूर होती है, परिवार में सभी सुख शांति से रहते हैं, लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और उन्हें सुयोग्य वर मिलता है, व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतान के घर में संतान होते हैं, पति अगर प्रदेश गया हो तो संतोषी माता की अनुकंपा से शीघ्र घर लौटता है, न्यायालय से कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसे जीत होती है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक क्लेश दूर होता है, व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों को संतोष मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। स्त्रियों से संतोषी माता के व्रत के बारे में इतना सुनकर उसने व्रत करने की विधि भी पूछी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने बताया, संतोषी माता का व्रत करके गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना कभी नहीं भूलना, ग्रहण करना कभी नहीं भूलना। संतोषी माता गुड़ और चने से की गई पूजा से प्रसन्न होती है। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान से निवृत्त होकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर में जा सको तो घर के किसी कमरे में संतोषी माता की मूर्ति या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वालों को उस दिन कोई खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए, घर में भी किसी को खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर सातवें बेटे की बहू ने मन में निश्चय किया, आज सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीद कर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा अवश्य करूंगी। उस दिन उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदे। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर उसने स्नान किया, फिर एक कलश में ताजा जल भरकर चने और गुड़ लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता की विधिवत पूजा की और व्रत कथा सुनी। फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे माता, मेरे कष्ट दूर कर, मेरा पति परदेश से सकुशल लौट आए। संतोषी माँ का स्मरण करते हुए उसने आसपास वालों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण किया। इस प्रकार सातवें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिवत व्रत करना आरंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया तो उसके पास पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ रुपया आ गया। इस पर घर के लोग उसे ईर्ष्या करने लगे, जेठानियां ताना मारने लगी, अरे अब तो पति के पत्र आने लगे हैं, रुपया भी आने लगे हैं। घर के बच्चे बार बार कहने लगे, अब तो चाची के पास रुपया आने लगा है, अब तो वह किसी से सीधी मुंह बात भी नहीं करती। वह बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रह जाती थी। वो हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में व्रत करने, कथा सुनने के बाद उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करती थी, हे माता, मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, मैंने तो अपने पति के सकुशल लौटने की प्रार्थना की थी। एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरी मनोकामना पूर्ण हो, तेरा पति शीघ्र ही घर लौटे। वह बेचारी संतोषी माता के वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौटी। उधर सातवां बेटा दुकानदारी में इतना व्यस्त हो चुका था
कि उसे पत्नी और घर का कोई स्मरण नहीं था। दुकान के काम में उसे फुर्सत भी नहीं मिलती थी। संतोषी माता उस बेटे की इतनी व्यवस्था देखकर बहुत परेशान हुई। तब बहुत सोचकर संतोषी माता ने उस स्वप्न में दर्शन देकर कहा, धनी साहूकार सो रहा है या जाग रहा है? संतोषी माता उसको स्वप्न में दिखाई दिया। वो बोला, हे माता, मैं जाग नहीं रहा और मैं सो रहा हूं, आप मेरे लिए आज्ञा करें। संतोषी माता ने कहा, तूने प्रदेश में आकर इतना धन कमाया, पर क्या तुझे अपनी पत्नी का स्मरण है? उसने कहा, हे माता, मुझे अपनी पत्नी का तो स्मरण है, लेकिन इस दुकान में कहीं जाने का मुझे अवकाश ही नहीं मिल रहा है। सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है। जब तक रुपया वापस नहीं आ जाता, मैं अपने घर नहीं जा सकता। संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक जलाकर पूजा करना, फिर दुकान पर जाकर संतोषी माता के नाम का दीपक जलाकर प्रणाम करके काम शुरू करना। शाम होते होते उधार दिया धन लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माता उसके स्वप्न में अंतर ध्यान हो। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों से स्वप्न की बात कही। वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे। देखिए, आजकल का दुनिया ऐसा ही है, धर्म की जब बात करते हैं ना तो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो व्रत करता है, जो भी भगवान को मानता है, उसको अडिग रहना चाहिए, अपने ऊपर अडिग रहना चाहिए। गांव वाले ऐसे ही बातें करते हैं। बोलो संतोषी माता की लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माता उसके स्वप्न से अंतर ध्यान हो गई। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों से स्वप्न की बात कही। वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका काम नहीं, तो उसका मन नहीं माना। उसने संतोषी माता का पूर्ण विश्वास करके उसके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया। दुकान पर भी दीपक जलाकर संतोषी माता का स्मरण करके काम शुरू किया। उस दिन संतोषी माता की अनुकंपा से सचमुच चमत्कार हुआ। उधार सामान ले गए लोग रुपया लौटाने आने लगे। देखते देखते रुपयों का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन लौट आया। दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ बिक गया। जब संतोषी माता का नमस्कार करके वह अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा, उधर सातवें बेटे की पत्नी प्रतिदिन की तरह जंगल में लकड़ी काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियों का बोझ अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गट्ठर उतारकर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर थोड़ा विश्राम किया। तभी उसे दूर से धूल यानी मिट्टी उड़ती हुई दिखाई दी। उसने संतोषी माता से पूछा, हे माता, आज ये मिट्टी कैसी उड़ रही है? माँ ने प्रसन्न होते हुए कहा, आज तुझे तेरी पूजा का फल मिलेगा। तेरा पति परदेश से लौट रहा है, यह मिट्टी उसी के लौटने से उड़ रही है। अब तू इन लकड़ियों को 3 हिस्से कर। एक हिस्सा नदी के किनारे रख, दूसरा हिस्सा मंदिर में रख और तीसरे हिस्से को सिर पर रख करके घर ले जा। तेरा पति लकड़ियां देख करके यहाँ रुकेगा, लकड़ियां जलाकर भोजन बनाकर खाएगा, फिर उसके बाद घर जाए। तू घर पहुंचकर लकड़ियों का गट्ठर आंगन में डालकर कहना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले आई हूँ, चोकर की रोटियां और नारियल की कटोरी में पानी दो। फिर पूछना, आज घर में कौन मेहमान आया। संतोषी माता की बातें सुनकर वह बहुत खुश हुई। उसके बाद वह घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसका पति भी आ गया। लकड़ियों का ढेर देखकर भोजन बनाकर खाया, वहीं बैठकर कुछ देर विश्राम करके घर जा पहुंचा। उधर बहू ने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज लगाई, सासू जी, लकड़ियां ले लो, चोकर की रोटियां और नारियल की कटोरी में पानी दे दो। आज घर में कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो परदेश आया, नहा धोकर मीठी खीर खा, नए कपड़े पहनकर पति के पास गए। उसके पति के कमरे की खिड़की से उसके पति ने कमरे की खिड़की से सब कुछ देख लिया और सुना। उसने कमरे से बाहर आकर भिखारिन की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा, माँ, ये औरत कौन है? माँ ने कहा, बेटे, ये तेरी बहू है। जब से तू परदेश गया है तब से इसने ऐसा हाल बना रखा है। सारे दिन गांव में जानवरों की तरह घूमती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती। आज तुझे देख कर की चोकर की रोटियां और नारियल की कटोरी में पानी मांग रही है। सातवां बेटा गंभीर होकर बोला, माँ, मैंने इनकी सारी बातें सुन ली, अपने कानों से सुनी है। मुझे बराबर वाले दूसरे घर की ताली दे दो, मैं उस घर में रहूंगा। बुढ़िया ने उस बेटे को दूसरे घर की ताली दे दी। वह अपनी पत्नी के साथ उस घर में आनंद से रहने लगा। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसने घर को महल जैसा सुंदर बना दिया। अगले शुक्रवार को उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ,
संतोषी माता की अनुकंपा से ही मेरे सब काम पूरे हुए हैं। अब मैं व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा अवश्य करो, मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्रित कर देता हूँ। उसने उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी। बहू ने अपने जेठानियों को, लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। सभी जेठानियां उसकी धन संपत्ति और वैभव से ईर्ष्या करने लगी। जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन के साथ खट्टी चीजें मांगना। वे नहीं चाहती थी कि उसका उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता की पूजा के बाद जब बच्चों को भोजन के लिए कहा गया तो वह सब खटाई मांगने लगे। बहू ने कहा खटाई किसी को नहीं मिलेगी। तब सभी बच्चे पैसे मांगने लगे। बहू उसकी भावना के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने बच्चों को पैसे दे दिए। बच्चे बाजार में गए और इमली लेकर खाने लगे। बच्चों को पैसे देने और इमली खाने से संतोषी माता क्रोधित हो। उनके प्रकोप से उसी समय राजा के सैनिक 7वें बेटे के घर पहुंचे, उसे पकड़कर ले गए। जेठानियां ताने मारने लगी, अरे बेईमानी से धन कमा कर लाया था, इसीलिए राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ कर ले गए। अब बंदी गृह में रहना पड़ेगा। 7वें बेटे की बहू रोते हुई संतोषी माता के मंदिर में जा पहुंची और प्रार्थना की, हे संतोषी माता, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई? आपने इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों दी? संतोषी माता तुरंत प्रकट हुई और कहने लगी, बेटी, तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर बहुत बड़ी भूल की। उन पैसों से बच्चों ने खटाई खाकर तेरे व्रत को भंग किया है। बहू बोली, माँ मुझे क्षमा करें, मैं बच्चों की बातों में यह सब भूल गई थी। अब मैं दोबारा उद्यापन करूंगी और कोई भूल नहीं करूंगी। संतोषी माता ने कहा, जब तू दोबारा विधिवत उद्यापन करेगी तो तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उसे उसका पति वापस आता हुआ मिल गया। बहू ने कहा, राजा के सैनिक आपको क्यों पकड़ कर ले गए थे? वह हंसते हुए बोला, मैंने इतना धन कमाया था, उसका कर यानी टैक्स नहीं दिया था, इसीलिए राजा ने मुझे बुलाया। अगले शुक्रवार को उद्यापन के लिए बहू ने लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उधर जेठानियों ने पुनः अपने लड़कों को भोजन में खटाई मांगने के लिए सिखा दिया। संतोषी माता की पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर बहू ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। बच्चों को जब भोजन के लिए बिठाया और खीर पूरी हलवा खाने के लिए दिया तो वे बोले, हमें खीर हलवा अच्छा नहीं लगता, हमें तो खट्टी चीजें खाने को दो। बहू ने कहा, किसी को खट्टी चीजें खाने को नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगा। खीर पूरी हलवा खाना है तो खाओ। बच्चे नहीं माने तो उसने उन बच्चों को भगाकर ब्राह्मणों के बच्चों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा में उन बच्चों को मीठे फल खाने को दिए। उसके उद्यापन से संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। उनकी अनुकंपा से बहू के शीघ्र ही गर्भवती हुई। उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिनों के बाद संतोषी माता ने सोचा, मैंने इसे जीवन के सभी सुख दिए, अब इसकी परीक्षा लेकर के देखती हूँ। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी माँ की कृपा अगर हो जाए ना तो माँ परीक्षा एक बार जरूर लेती है। इसलिए अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए, कभी भी अपने को कमजोर साबित करने की कोशिश नहीं करनी। यही इस कथा में शिक्षा मिलती है। यह सोचकर संतोषी माता ने बुढ़िया का रूप धारण किया और लाठी टेकती हुई बहू के घर पहुंची। बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उसे देख सभी मुंह सिकोड़ने लगे। बुढ़िया ने जाकर दरवाजा खटखटाया तो बहू की सास ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही जोर से चिल्लाई, अरे लड़कों, इस गंदी बुढ़िया को भगाओ, मुझे तो ये कोई चुड़ैल नजर आ रही है, इसे भगाओ। लड़के उठकर भागे और उन्होंने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। छोटी बहू बराबर वाले घर की खिड़की से उस बुढ़िया को देख रही थी। उसने दरवाजा खोला, बुढ़िया के पांव छूकर अपने घर में ले गई। सास ने उसे रोका तो बहू बोली, आज तो खुशी का दिन है, मेरी संतोषी माता मेरे घर आई। देखिए, ऐसे से रोम खड़ा होता है। कथा सुनने का मतलब ये नहीं कि इस कान से सुनो उस कान से निकालो। अगर पूजा करना तो सच्चाई से करो, दिखावा के लिए पूजा किसी को नहीं करना। इस बात को ध्यान रखना है। आज तो खुशी का दिन है, मेरी संतोषी माता मेरे घर आई। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था, बहू ने उसे दूध नहीं पिलाया। संतोषी माता की सेवा में इतनी व्यस्त हो गई, बुढ़िया सास क्रोध से बहू को बुरा भला कहने लगी। बहू बोली, सासू माँ, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है, इसका व्रत करने से ही मेरे घर में इतनी खुशियां छाई।
इतना सुनते ही सब उस बुढ़िया के पास दौड़े हुए आए और उसके पांव छूकर क्षमा मांगने लगे। माँ, हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचाने में बहुत बड़ी भूल की, हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते थे। हे माता, अब हम भी आपका व्रत किया करेंगे। आपकी प्रार्थना सुनकर बुढ़िया का रूप धारण लिए संतोषी माता प्रसन्न हुई और उन्होंने संतोषी माता के व्रत की विधि बताई। व्रत की विधि जानकर संतोषी माता के व्रत करने से उन सभी की मनोकामना पूर्ण हुई। बुढ़िया के सभी बेटों का व्यापार अच्छा चलने लगा। संतोषी माता का व्रत खसा सुनकर गुड़ और चने का प्रसाद खाने वालों को सभी मंगल कामनाएं संतोषी माता जरूर पूर्ण करती। व्यवसाय से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। निसंतान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। संतोषी माता का विधिवत व्रत करने वाली कुंवारी कन्याओं का मन चाहा सुंदर और सूर्यों के वर्ग मिलता है। बोलो संतोषी माता की आज के आनंद की। देखो, संतोषी माता की कथा, माँ की कृपा से आज मेरा सौभाग्य है कि मंदिर में सेवा करने का मौका शाम समागम टीम को मिला और पिंकी बड़े भाव से जो उसको सेवा करने को लिए दिया गया, अपना निस्वार्थ सेवा से अपना सेवा किया। अगर माँ से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग से अगर कोई गलती हुई तो हमें क्षमा करें और हमें आगे के लिए सद्बुद्धि दें। अगर कोई गलती हमसे ना हो उसके लिए हमें सद्बुद्धि दें और आज तक जो भी हमने किया उसमें अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। यही माँ से हम लोग प्रार्थना करते हैं। अभी हम लोग माता की आरती करेंगे, उसके बाद में गुड़ चना जो भी बैठे हुए हैं सबको प्रसाद देंगे, हाथ धो करके। उसके बाद जो अपने 8 बच्चों को जो बुलाए हैं लड़कों को, खटाई कोई भी नहीं खाए तो वो ध्यान रखना है और अपना खाएगा। उन लोगों को खाना खिलाना है और एक लड़की को वो अपना जैसे नियम होता है जो संतोषी माता का वो करेंगे। उसके बाद जो भी उपस्थित है सबको प्रसाद जो भी मिलता है वही प्रसाद माँ का ग्रहण करके अपने घर से। और रात को कोई भी खटाई नहीं खाएगा। इस बात का एकदम ध्यान विशेष रूप से रखना है, क्योंकि हम लोगों ने जानकारी दे दी। अगर गलती करते हैं तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, माँ की कृपा सब पर बनी रहे। लेकिन जानबूझकर अगर करेंगे तो दंडनीय है। अनजाने में अगर कुछ हो जाता तो कुछ नहीं, क्योंकि देवरानी जेठानी ने बदमाशी की इसलिए उसको दंड मिला। अगर अनजाने में होता तो कभी भी दंड नहीं। तो अनजाने में जो व्रत कर रही थी 7वें बेटी की बहू ने, वो तो अनजान थी, फिर भी उसको दंड मिला ना, उसका उद्यापन पूरा नहीं हुआ ना, इसलिए उसको जो फिर से उद्यापन करना पड़ा। इसलिए हम लोग से कोई गलती नहीं हो, बस यही बात है। देखिए, हम लोग संतोषी माता का आज तक कभी कथा नहीं किया, न कभी पूजा किया, फिर भी हम लोगों के ऊपर माँ की इतनी बड़ी कृपा है। आज 1 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं और यही पूजा पाठ आगे चलते रहे। हम लोग कल बात करेंगे और अंजनदा का बहुत बड़ा सपना जो था वो सपना 1 साल पूरा हुआ। आज 1 साल पूरा होने के बाद हम लोग उनको भी याद करते हुए 1 मिनट के माँ संतोषी के श्री चरणों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 1 मिनट के मौन धारण कीजिए सब कोई। बोलो संतोषी माता की। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भाव से सबको बैठे हैं, माँ की कथा सुनी, माँ की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, यही हम लोगों की प्रार्थना है। अब हम लोग सब प्रेम से बड़ी सुंदर से आरती करेंगे माँ की। वो बच्ची आरती उसके अंदर फूल अभी एक हाथ पर रखो। आरती के बाद जो हाथ में फूल है ना वो माँ के चरणों में चढ़ा, ठीक है। जो नहीं है बेटा उनको बुला लो, जो है। एक दिन बड़ी घंटी धीरे धीरे मेला करके बजाया बेटा। आरती के समय खड़े हो जाएं आराम से, बड़े प्यार से माँ की आरती।
संतोषी माता पट रखिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं नमामि सहितं नमामि। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन के, अपने सेवक जन के सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माता मैया, माता पन्ना दमके हीरा, पन्ना दमके तन स्वीकार कियो। जय संतोषी माता, उदार जटाजनि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। सत करुणामयी वंदन, सत करुणामयी वन जन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी, चवर डोले प्यारे, ओ मैया चवर
थोड़ा देना मैं बाकी भी लेकर दीजिए डाल के बाद ले गया दिव्यांश एक मिनट इधर आओ दिव्यांश इधर आओ तो ये खोलो तो ये खोल दो साउंड सिस्टम को वो लगा दो साउंड सिस्टम को लगा संतोषी चरण रिद्धि सिद्धि दातार ध्यान धरत ही होत नर दुख सागर से पार भक्तन को संतोष दे संतोषी तब नाम कृपा करहु जगदम्ब अब आई तेरे धाम। जय संतोषी माते अनूप शाखदायिनी रूप मनोहर सुंदर वर्ण चतुर्भुज रूप वेश मनोहर ललित अनूप श्वेतांबर रूप मनहारी माँ तुम्हारी छवि जग से न्यारी दिव्य स्वरूप आयत लोचन दर्शन से हो संकट मोचन। जय गणेश की सुता भवानी रिद्धि सिद्धि की पुत्री ज्ञानी अगम गोचर तुम्हारी माया सब पर करो कृपा की छाया नाम अनेक तुम्हारे माता अखिल विश्व है तुमको ध्याता तुम्हारे रूप अनेकों धारे तो कही सके चरित्र तुम्हारे। धाम अनेक कहाँ तक कही सुनिए तब करके सुख लही विंध्याचल में निवासिनी कोटेश्वर सरस्वती सुहासिनी कलकत्ते में तू ही काली दुष्ट नाशिनी महाकराली संबलपुर बहुचारा कहाती भक्त जनों का दुख मिटाती।
दुख सबकी साक्षी तुम हो, राजनगर में तुम जगदम्बे, बने भक्त पाली तुम अम्बे। पावागढ़ में दुर्गा माता, अखिल विश्व तेरा यश गाता, काशीपुराधीश्वरी माता, अन्नपूर्णा नाम सुहाता, सर्वानंद करो कल्याणी, तुम्ही शारदा अमृतवाणी, तुम्हारी महिमा जल में थल में, दुख दारिद्र सब मिट पल में। जेते ऋषि और मुनीषा, नारद देव और देवेश, इस जगती के नर और नारी, ज्ञान धरते हैं बात तुम्हारी, जा पर कृपा तुम्हारी होती, यह पाता भक्ति का मोती, दुख दरिद्र संकट मिट जाता, ध्यान तुम्हारा जो जन ध्याता। जो जन तुम्हारी महिमा गावे, ध्यान तुम्हारा कर सुख पावे, जो मन राखे शुद्ध भावना, ताकि पूर्ण करो आनंद, तुमके निवारे सुमति के दाते, जयति जयति माता जगधात्री, शुक्रवार का दिवस सुहावन, जो व्रत करे तुम्हारा पावन। गुड़ छोले का भोग लगावे, कथा तुम्हारी सुने सुनावे, विधिवत पूजा करे तुम्हारी, फिर प्रसाद पावे शुभकारी, शक्ति सामर्थ हो जो धन को, दान दक्षिणा दे विप्रन को, वे जगती के नर और नारी, मन वांछित फल पावे भारी। जो जन शरण तुम्हारी जावे, सो निश्चय भव से तर जावे, तुमरो ध्यान तुम्हारी ध्यावे, निश्चय मन वांछित वर पावे, सतवा पूजा करे तुम्हारी, अमर सुहागिन हो वह नारी, विधवा धर के ध्यान तुम्हारा, भव सागर से उतरे पारा। जयति जयति जय संकट हरणी, विघ्न विनाशन मंगल करणी, हमारे संकट है अति भारी, देगी खबर लो बात हमारी, निश दिन ध्यान तुम्हारो ध्याता, देह भक्ति वर हमको माता, ये चालीसा जो नित गावे, सो भव सागर से तर जावे।
की आँखों में दिखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आँखों में माँ की आँखों में झुम 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 झम 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 झुम 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 झांकी निहारों रे झांकी निहारों मैं आरती उतारूं आरती उतारूं आरती उतारूं रे आरती उतारूं आरती उतारूं आरती उतारूं रे जय जय संतोषी माता जय जय माँ 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 सा पा मा पा सा मा गा मा सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में माँ के मंदिर में नित धन धन की होए जयकार माँ के मंदिर में सदा मंदिर में माँ के मंदिर में दिखे हर घड़ी माँ के मंदिर में दीप धरो धूप धरो प्रेम सहित भक्ति करो जीवन सुधारो रे जीवन सुधारो मैं आरती उतारूं आरती उतारूं आरती उतारूं रे जय जय संतोषी माता जय जय माँ जय जय संतोषी माता जय जय माँ मैया तेरे हजारों रखी है ওলাই আহিলোঁ এতিয়া মই যেতিয়া ঘৰ যাম আজি ক'তো নোসোমাওঁ